So let me formally welcome you, ma'am. Good morning, everyone. Welcome you all once again to this masterclass on intellectual property rights organized by LNMIT Center for Entrepreneurship. Um, we keep doing a lot of things about entrepreneurship. We work on our startup area, but there is one problem that we all at times feel and we miss out on taking care of our own intellectual property rights. So we thought about let's have an expert here who's an authority into the subject and has been doing and supporting a lot of researchers, academicians, and startups into the space. So please join your hands together to welcome Ms. Bharti Jain. She's a founder of Swash Legal Consulting based out of Gurgaon, and she has been running her own company and supporting into this IPR space to the startup incubators and education institutions for over last few years. So I thought none other than her could, explain her about some of the basics of IPRs, and then followed by that we'll indulge into some kind of, chat and conversation and specific set of questions that we have in mind. So without further ado, thank you so much, Bharti Jain ma'am, to join us today, and we look forward to hear from you. Thank you very much. So it's a very, nice brief introduction with the major query that we know something about the IPR, but we don't know how to identify or protect our own IPR. So to fulfill this, let's draw some light on what is IPR and good, better understanding so that we can relate this in a manner that we can relate this to our, day-to-day activities that actually are we creating something out of our, continuous thinking, and can something be developed through this creativity? Sharing the presentation. Though it's not mandatory to stick to the presentation, some slides we may skip, and it's better to keep it interactive. I'm sharing the screen. Visible? Yes, ma'am. Okay. So how to identify the innovation? What happens that thinking is a natural process in humans' mind. We constantly think, tend to think, and this is individuals, there is a difference in individuals about the way they are thinking. Some are more creative, others could be more innovative and having scientific acumen, others could be in the financial things. So that can be different, but then thinking and ideating is a constant process. What happens? We encounter a lot of problems, many situations we see where even online or physical, there is a problem. Had this been thing like that, it would have overcome that problem, and then we go away. We tend to forget it, the problem, and that's why we don't think about the solution. So identifying the problem is at the core of innovation. You can see that in China, there are many, utility patents and design articles which are patented, solving small problems and or requirements of the individuals, be it keeping small houses, in small houses, keeping that kind of, molding customized furnitures, or hanging something to for clothing. Many things are there, but what
We don't pay heed to our problems. We pay heed to problems, but then ignore that and move on. So it's providing new solution to a problem. When you identify the problem, you can innovate about an idea that can be implemented to provide new solution to a problem or improve efficiency of existing solutions. Now you need to see if this idea is original and novel, feasible and addressing a need. So originality is the requirement of copyright and novelty is the requirement of patent and designs, right? Then that idea can be implemented. It is feasible and it is addressing a need. If these things are there, then you should think of protecting it. Why? Because at the end of the day, it is all about socio-economics. You are providing a solution to the society, to an existing problem, and then state is granting you a kind of monopoly of 20 years to use that invention for your commercial benefits. You can commercialize it by yourself, or you can assign, sell, or license it out to others who has the capacity to commercialize it. योर इंटेलेक्ट बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं अरे हम एक ग्रुप ऑफ पीपल में बैठे, दैट वाज माय आइडिया और उसने मेरा आइडिया चुरा लिया. So actually what happens? Idea is not protectable. Who works on that idea to provide a solution is able to protect that right. Mere idea does not have any worth. It will die eventually. But if you work on that idea, develop something which is tangible or which can be presented on a medium, whether it is virtual medium or physical medium, then it is worth protecting under the intellectual property rights. It can be a scientific invention, a process, a device. It can be a creative work which is artistic, literary, software, cinematograph, sound recording. It can be a brand as a name, image, logo to provide your products to the customers in the market, right? It can be aesthetic feature of an article, like ऑटोमोबाइल्स में बहुत होता है ना, मशीनरी सब में वही है, बट द एस्थेटिक फील, द शेप, द साइज, द वे इट इज appealing to eyes matters a lot to customers. So that is design rights. अभी ये होता है, इफ यू सी इत्र ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, देयर इज अ ट्रेंड दैट आजकल लोग उसको एक अपनी नई बॉटलिंग पैकेजिंग में देते हैं. व्हाई? फॉर एन एडेड लेयर ऑफ आईपी कि कस्टमर अगर भीड़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट देखता है, मेरा काजल देखता है कि भाई मेरे ब्रांड का, इस पर्टिकुलर ब्रांड का काजल लेना है या शैम्पू लेना है, तो उसको इतने सारे प्रोडक्ट में वो ढूंढना नहीं पड़े, दूर से मेरी पैकेजिंग और बॉटलिंग ही उसको अट्रैक्ट करे एंड वो कह सके कि यस, दिस इज द ब्रांड आई वांट. Customer should not go to see the brand with the packaging, with the bottle shape, color, design. He is able to connect himself with that particular brand, right? So this kind of, then the protected IP, it is a catalyst for economic and social and cultural well-being, and it strike a balance between the interest of innovator and the public at large. Because the philosophy, what is the philosophy behind the patent? That knowledge should not die because of known sharing. इतना सारा नॉलेज था इन इंडिया, बट वो जनरेशंस टू जनरेशंस वो अपने क्लोज ग्रुप में डिसेंड होता था. नाउ
वो generations, due to change in legal perspective, geographical perspective, what happened? People were not able to survive using that knowledge, and then they uh, resorted to other professions, and that knowledge eventually vanished. So this is the idea that there is no use of reinventing the wheel all the time. Whatever someone is creating or developing should be future developments are something better of that existing development, not the same one. And when there is something better, different in a different way, in that case, it it can be protected under the protected by the developer or creator in his name for the commercial benefits and other non-monetary benefits, such as if an academician has a patent, it gives a credibility, adds to his name in that particular scientific community. Now, when I have a patent or I have a design, I have the right to choose that who will use it. Some who will use it. I can do the charity. I can give it public to the public free, but to a relevant public, right? At my wish. So that means you can control or watch the use of your inventions when these are protected by law. Otherwise, you develop something, someone else will reverse engineer it and use it in any way. You don't have any right on their use and the way it is used, right? Now, there are multiple, copyrights, and there is a big confusion that how sometimes it's not that creators don't want to protect it, but they don't have the way, or there is a confusion. Write it, who to give it, where to submit it, what is the fee, who will bear the financials of the protection, right? So these are the things which should be taken into account uh, in the first place. Now, if it is a product or a process or an apparatus or device, it is protectable under the patents subject to, if it is novel, subject to the condition that it is novel. नोवेल्टी इज वर्ल्ड वाइड नोवेल्टी. ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत लोग आते हैं, मैडम ये इंडिया में नहीं है, आप पैटेंट करवा दो क्योंकि ये इंडिया में आई एम द फर्स्ट. ऐसा नहीं है. नोवेल्टी इज वर्ल्ड वाइड नोवेल्टी. कहीं भी अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट में पब्लिक डोमेन में है, किसी भी वे में, इन पेटेंट लिटरेचर, नॉन पेटेंट लिटरेचर, एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट, एज ए ट्रेडिशनल नॉलेज, इट इज नॉट पेटेंट. Then involve in inventive step. इसका एग्जाम्पल ये है कि there is a pencil. Suppose it is invented now, and then eraser is invented. Both products are used in an independent way, independent of each other. Up, someone comes up with the idea कि यार मुझे पेंसिल इरेजर दोनों लेके जाना पड़ रहा है, कभी खो जाता है या it is is creating, occupying the space. तो उसने क्या किया, पेंसिल बनाई और उसके पीछे इरेजर लगा. Now this pencil plus eraser, in view that pencil was already invented, in view that eraser was already invented, ये pencil plus eraser जो है ना, is it inventive? No, it is novel. पहले किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि पेंसिल के पीछे इरेजर लगाऊं. So it is novel, नई चीज है, but it is not inventive because both the components are capable of being used independent of each other. Number one. Second, any person ordinarily skilled in the art would have been able to create this
राइट. सो नाउ डिजाइन राइट में आपको इन्वेंटिव स्टेप नहीं चाहिए, सिर्फ नोवेल्टी चाहिए. बट पैटेंट्स में आपको नोवेल्टी भी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप भी चाहिए. तो पैटेंट तो पेंसिल प्लस इरेजर जिसने बनाया उसको पैटेंट नहीं मिलेगा, बट इट इज समथिंग विच इज नोवेल एंड एस्थेटिकली इट इज डिफरेंट. It appeals to the naked eye, so it is protectable under the design, not under the patent. It is obviously industrially applicable. Trademarks, you know, brands, everyone is aware of those. Then copyrights. While patent is someone's right when it is applied and granted in his name. अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, आपको ग्रांट नहीं हुआ, वो आपका राइट नहीं है. सेकंड, पैटेंट इज फर्स्ट टू फाइल राइट्स एंड टेरिटोरियल राइट्स. आपने इंडिया में फाइल किया, वो इंडिया में ही राइट आपका एनफोर्सेबल है, नॉट आउटसाइड इंडिया. ट्रेडमार्क अगेन इट इज अ राइट बट बाय वे ऑफ यूज. के बारे में आप अभी अप्लाई करो, प्रूफ 20 साल पहले के दो, यूजर डेट उस 20 साल पहले की क्लेम करो एंड आपको वो प्रायर यूज के साथ राइट मिलेगा. सो इट इज फर्स्ट टू यूज, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, एंड इट इज अगेन टेरिटोरियल राइट. इंडस्ट्रियल डिजाइन अगेन टेरिटोरियल, subject to novelty. Copyright is, and industrial design is again first to file right, just like patents. Trademark first to use right, but copyright is first to create right, and it is an inherent right of the author. That means आपने रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, बट ये आपका राइट है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आपने वो क्रिएट करके पब्लिक को कम्युनिकेट किया ऑन एनी मीडिया. ठीक है. एंड कॉपीराइट इज वर्ल्ड वाइड राइट, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी टेरिटरी. देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इट इज अ right of a community, not the individual's right or any company's right. It is a right given to a community or association, वहां पर जितने भी लोग उस एसोसिएशन का पार्ट है, बिकॉज दिस इज गिवन फॉर समथिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और सम क्या कहते हैं जो फूड स्टफ और सम हैंडीक्राफ्ट विच इज एवोकेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, right? Then other rights are plant variety right, trade secret right. Trade secret right means जो आपने as a secret रखा, you have taken all the steps to keep it secret and it is giving you an added advantage, but it is governed by common law. इसके लिए कोई trade secret law नहीं है. Then semiconductor and integrated circuit layout design right, जो law तो 2000 से है इसका भी, लेकिन अभी तक कुछ होता नहीं था रजिस्ट्री में. नाउ दे हैव स्टार्टेड वर्किंग रिसेंटली. अदर राइट्स आर डोमेन नेम्स, और डोमेन नेम्स आपको टाइमली रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है. रीजन क्या है कि आजकल ये कंफ्लिक्ट बहुत चलता है डोमेन नेम का, ट्रेडमार्क का और कंपनी नेम का. आपने एक डोमेन नेम लिया लेकिन उसका ट्रेडमार्क किसी और ने ले लिया एंड उसी से कंपनी नेम किसी और ने करवा लिया. These type of things are very much happening, and that is why it's important to protect your rights as soon as possible. Trade secret and know-how we have already discussed. How to protect? ये एक और एग्जाम्पल नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप का. फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज इन्वेंटेड, देन एन ऑटो पायलट इन एन एयरक्राफ्ट इज इन्वेंटेड. Someone invents a car with this autopilot. Is it novel? Is it inventive? Novelty का आंसर होता है yes or no, objective.
क्या कार विद ऑटो पायलट किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पहले किसी ने लिखा है? इफ नॉट, इट इज नोबल. बट इन्वेंटिव स्टेप इज क्रूशियल एंड मोस्ट ऑफ द पैटेंट्स का जो रिजेक्शन होता है वो इन्वेंटिव स्टेप पे होता है. यहाँ देर इज नो बार ऑन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट साथ में कंबाइंड रीडिंग से they are making that invention obvious to a person skilled in the art, then it is not inventive. And now, answer to inventiveness is very subjective. Subjective in the sense, now it will be seen by the registry or the courts that क्या ये ऑटो पायलट इसमें सेम है, क्या इसकी फंक्शनिंग डिफरेंट है, क्या इसमें कितना इंप्रूवमेंट या चेंज लाना जरूरी था to enable it to work in a car with a different technology and different, this way, like on the road. Aircraft is in the air, less traffic, less of obstructions, but car on the road, more obstructions, more entirely different kind of algorithm is needed. So यहाँ पर court will see what kind of improvements or developments or differences were required autopilot function in a car, right? So for that purpose, whenever you do something, create something, develop something, prior art search आप जरूर करें कि prior art search जरूर करें कि हम जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी है तो नहीं, और अगर ऑलरेडी किसी ने किया है तो उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. जैसे कैंसर की मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है, स्टिल treatment is costly, treatment is lengthy, treatment is very tough and not user friendly. So can I develop something which is cost effective, easy, with less of side effects and less therapeutic, curative timing, right? And प्रायर आर्ट सर्च आप पैटेंट, नॉन पैटेंट सर्च, जनरल गूगल सर्च सब जगह करोगे, राइट? तो बिफोर प्लानिंग दिस R&D आप ये करो, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग भी आप ये कर सकते हो, और उसी सर्च को जब हम कमर्शियलाइज करते हैं तो ये सर्च का जजमेंट डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज तब हम, क्योंकि पैटेंट का लाइफ स्पैन 20 ईयर्स का होता है, तो आर वी फ्री टू पुट आवर टेक्नोलॉजी इन द मार्केट इज सीन बाय वे ऑफ freedom to operate search which is within the territory. Novelty हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, बट फ्रीडम टू ऑपरेट हम उसी टेरिटरी में देखते हैं जहां हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, whether it is infringing a valid and enforced patent or we are free to operate. सेक्शन 3 हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज अबाउट कि some things, some inventions, they are novel, inventive and capable of industrial application, still they are not patentable under the law, and these exclusions are given in section 3. For example, method of treatment of animal and human are not patentable. वो पेंसिल इरेजर का एग्जांपल लिया था सेक्शन 3F कि two devices, they are working independently in an independent way. If you join them, and effect is कि वहाँ कोई synergy नहीं है, कोई added this unexpected effect भी नहीं है, वहाँ भी साथ में भी वो दोनों एक उसी तरह से काम कर रहे हैं, then it is not patentable. Of relieving properties, और आपने कहा कि it is for the cough and healing, तो it is mere admixture, यहाँ कोई unexpected effect नहीं आया. So it could be novel, inventive, but it is not patentable because it is mere admixture. Type, आप जब Indian, as an Indian, when you are Indian, ordinary application you can first file in India.
बाहर अगर आपको फाइल करनी है तो फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, या पहले इंडिया में फाइल करो, आफ्टर 6 वीक्स आप बाहर फाइल करो। आपने इंडिया में फाइल किया और किसी दूसरे कंट्री सपोज यूएस में फाइल करना है, तो देर आर टू रूट्स, कन्वेंशन रूट जहां आपको 12 मंथ्स में उस कंट्री में एंटर करना है, आपका प्रायोरिटी डेट सेम रहेगा जो इंडिया का था। इट इज क्योंकि पेटेंट सिस्टम में नोवेल्टी चाहिए। अब आपने इंडिया में फाइल करा दिया आज की डेट में, और आज ही की डेट में यूएस में नहीं कराया, तो वर्ल्ड वाइड नोवेल्टी तो आपका अपना इंडियन पेटेंट ने ब्रीच कर दिया, है ना। तो उसके लिए एक सिस्टम दिया गया, पेरिस कन्वेंशन, दूसरा था पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। पेरिस कन्वेंशन में आपने इंडिया में आज फाइल किया, यूएस में अगर विद इन 12 मंथ्स आप फाइल करते हो तो यू विल गेट सेम प्रायोरिटी डेट ऑफ इंडिया। सिमिलरली पीसीटी में आप एक पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हो, देन यू विल गेट 31 months फ्रॉम द फर्स्ट प्रायोरिटी डेट टू चूज कंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्लाई देयर। And then there are divisional and patent of additions. एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है? फर्स्ट तो कि कौन फाइल करेगा। एप्लीकेशन इन्वेंटर का राइट है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, वहां के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यूजुअली व्हाट इज द रूल की, since that you are using organizations resources, you are getting salaries from them, patent rights are with organizations and inventors, you are the inventors. So true and first inventor or assignee of the inventor or legal representative. आपने जब फाइल किया तो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन आप प्रोविजनल अगर फाइल करते हो, क्योंकि ये फर्स्ट टू फाइल राइट है, सो व्हाट हैपेंस कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज में जैसे ही आता है, आप जल्दी से जल्दी उसे फाइल कर दो, encompassing the scope of the invention. It does not contain claim, और वहां पर आपको experimental data, drawings कुछ नहीं चाहिए, but within 12 months you need to file the complete specification with all the data, with all the details. उसके बाद वो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स पब्लिश होगा। अगर आपको जल्दी पब्लिश कराना है तो आप फॉर्म 9 अर्ली पब्लिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करो, वो विद इन 1 मंथ ऑफ दैट रिक्वेस्ट पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद अगेन उसमें कुछ नहीं होगा जब तक कि आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन नहीं फाइल करते, जिसकी ड्यू डेट है 31 मंथ्स। 31 मंथ्स में जब आप फाइल कर देते हो, जितना जल्दी करो अच्छा है, अदरवाइज वो ऐसे ही रखा रहेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जब आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन या रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइल कर दोगे, देन देयर इज एग्जामिनेशन प्रोसेस, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होगी, 6 मंथ्स में आप उसका रिप्लाई दोगे विच इज एक्सटेंडेबल बाय 3 मंथ्स, देन यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकता है या हियरिंग आ सकती है, एंड आफ्टर हियरिंग ऑल्सो देयर इज एन ऑर्डर। So these are the deadlines. It is along with the form 3 which is undertaking कि अगर आप कहीं बाहर फाइल करते हैं तो कंट्रोलर को इन्फॉर्म्ड रखेंगे। फॉर्म 5 डिक्लेरेशन ऑफ द इन्वेंटरशिप, दैट applicant declares that following are the inventors। ठीक है, you can withdraw your application within 15 months, और आपका एप्लीकेशन में प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन भी फाइल हो सकता है। इन्वेंट क्या होता है कि पेटेंट सर्टिफिकेट में सिर्फ एप्लीकेंट का नाम आता है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ये स्पेशली ये चैलेंज आता है कि क्योंकि एकेडमिशियन को अपना क्रेडेंशियल के लिए दिखाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम क्या करें, सर्टिफिकेट में तो हमारा नाम ही नहीं है। तो फॉर्म 8 इज अ प्रोविजन कि आप एप्लीकेशन के साथ फॉर्म 8 फाइल कर दो तो सर्टिफिकेट में इन्वेंटर का नाम भी आएगा। और एक रिसेंट अमेंडमेंट जो लास्ट मार्च में हुआ है 2024 में, एंड ग्रांटेड भी है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फॉर्म 8A पे आप सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपके इन्वेंशन में कोई बायो रिसोर्स यूज हो रहा है, जेनेटिक सीक्वेंस यूज हो रहा है, तो आपको एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है,
फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस हमने आपको बता दिया है, आप इंडिया हो, इंडिया में ही आपने इन्वेंशन डेवलप किया, फॉरेन में फाइल करने के लिए यू नीड अ फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। देन कई बार जो सेल्फ राइटिंग करते हैं स्पेसिफिकेशन की, वो मियर स्टेटमेंट दे देते हैं, हमने ये किया, ये किया, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट नॉट विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा कि कैसे हो रहा है, हाउ इट इज परफॉर्म्ड, इनेबलमेंट भी नहीं देते। तो ये एक मेजर जो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोजर और इनेबलमेंट का ध्यान रखें। और अगर इफ यू आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन इट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन अ इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी। देयर आर 3 इन इंडिया, वन इज इमटेक चंडीगढ़। अगर आपको पता नहीं था कि पेटेंट नाम की कोई चीज है, तो देर इज एन ऑप्शन 1 ग्रेस पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि आप 1 ईयर उस डिस्क्लोजर के विद इन 1 ईयर आप पेटेंट फाइल कर सकते हो अलॉन्ग विद एन एफिडेविट, एंड देन मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। मेरा ये आइडिया उसने चुरा लिया, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे करवाते हो, उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करो, उसमें लिखा हो कि दीज आर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज योर आईपीआर, एंड it is given to that person for this work, and he is paid for that work. He does not have any intellectual property in that, राइट। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो हमने डिस्कस किया, आर्टिकल्स के लिए होता है न्यू आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे कि ये शूज, क्या बोलते हैं इनको, Clogs. क्रॉक्स, यस। क्रॉक्स जो आया, क्रॉक्स इज अ ब्रांड ऑफ सच टाइप ऑफ शूज, पर इतना पॉपुलर हुआ कि ये ब्रांड ही जेनेरिक हो गया। इस तरह का कोई भी आए फुटवेयर, दैट इज क्रॉक्स। इवन पार्ले का और इसका ओरियो का जो केस लो है, गूगल पे पढ़ सकते हो। पार्ले भी अपने एक प्रोडक्ट के साथ ऐसा आया, बट इन ओरियो ने ये जो है इसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, स्पेशली एक मशीनरी उन्होंने लगाई थी उसके लिए, इस तरह का बिस्किट बनाने के लिए। सो व्हेन पार्ले केम विद सच थिंग, सेम सिमिलर डिसेप्टिवली सिमिलर थिंग, दे सूड, एंड पार्ले को अपना प्रोडक्ट विड्रॉ करना पड़ा। इट इज़ वेरी सिंपल इन फाइलिंग। आप एप्लीकेशन फॉर्म 1, जिसमें इसमें एप्लीकेंट और इन्वेंटर अलग अलग नहीं होते, जिसने भी किया है सब एप्लीकेंट है, और सिर्फ अपना जो भी आपका ड्राइंग है उसका आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देना है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, एंड देन पर्सपेक्टिव व्यू विद दिस नोवेल्टी स्टेटमेंट एंड डिस्क्लेमर कि इसमें आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए आपको ये राइट नहीं मिल रहा, न ही मैकेनिकल के लिए, न ही किसी ब्रांड के लिए जो इस पे अपीयर हो रहा होगा। It's only for the aesthetic properties, outer appearance of this product. Very simple. Then copyright for the artistic work, dramatic, musical, और आप इसको कॉपीराइट ऑफिस में फाइल जब करते हो, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क के लिए 500 फी है। इसमें आपको फॉर्म 14 के साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स देना होता है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की वर्क की सारी डिटेल जाती है, अलॉन्ग विद, अगर आप एक कंपनी हो तो जो साइनिंग अथॉरिटी है उसका बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, अटॉर्नी के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी तो चाहिए, देन वर्क आपका सीडी में जाएगा या फिजिकल कॉपीज जाएंगी, और इसमें अलग से मेंशन होता है कि दिस इज द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कैन बी द ऑथर, applicant can be the owner, applicant can be the publisher, applicant can be the producer। जैसे कि मूवीज में ऑल राइट्स टू द मूवी आर विद प्रोड्यूसर्स, उन सबका फिर प्रोड्यूसर को सबसे एनओसी लेना पड़ता है कि दे हैव डन दिस वर्क फॉर मी फॉर दिस पर्पस। मोरल राइट्स ऑफ अ कॉपीराइट आर नॉन अलाइनेबल विद द ऑथर, उन्हीं के रहेंगे। दे हैव द राइट कि अगर कोई गलत तरीके से उनके वर्क को प्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, म्यूटिलेट कर रहा है, तो दे कैन स्टॉप हिम, बट कमर्शियल राइट्स आर विद द राइट होल्डर्स, ओनर्स के पास। ठीक है,
कंप्यूटर प्रोग्राम में एक रहता है कि whether they are copyrightable thing or patentable thing. Patents are stronger rights if they are not the computer program per se or not the business method. अब ये एक राइटिंग स्किल भी होता है, आपने स्पेसिफिकेशन किस तरह से राइट किया हो, ठीक है. In that case, these are if it is patentable, go for patent, then go for copyright. Because copyright, though it is worldwide right, but it is a weak right. क्योंकि ये creativity पे है. It is for the not patent is for the idea which is presented in a tangible form. But copyright is on the expression of idea. That means आपने देखा होगा एक ही नॉवल पे बेस्ड 5 मूवीज बन गई, बट एक्सप्रेशन सबका डिफरेंट है. वर्क वाज सेम. सो कॉपीराइट इज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, बट पेटेंट इज फेयर यूज टीचिंग ट्रेनिंग कुछ है जो कॉपीराइट में पायरेसी का इन्फ्रिंचमेंट का बहुत इशू रहता है. कॉपीराइट नोटिस भी आते हैं आजकल लोगों को. सो देयर इफ इट कम अंडर द फेयर यूज अंडर सेक्शन 52, देन देयर इज नो इन्फ्रिंचमेंट. सो आप ये चेक करो whether you are infringing or not. प्रोसेस भी सिंपल है. आपने फाइल किया, या तो वो सीधा जो 1 मंथ का पीरियड है वेटिंग पीरियड, उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा, या डिस्क्रिपेंसी लेटर आएगा विद इन 1 मंथ आप उसका रिप्लाई, फिर भी 3 to 5 months 6 months में डिजाइन सॉरी कॉपीराइट्स रजिस्टर हो जाते हैं यूजुअली, अनलेस देयर इज अ हियरिंग. एंड देन ट्रेडमार्क. also कई बार वोकल फॉर लोकल, आपने ये नाम देखे है ना, इनका भी ट्रेडमार्क होता है. अगर सरदार जी का 50 साल पुरानी दुकान है, अदरवाइज ये जेनरिक हो जाएगा. भाई सरदार जी बर्फी वाले, ये तो कोई भी नाम रख सकता है ना. तो यूजुअली दीज जेनरिक नेम्स आर नॉट पेटेंटेबल, बट यहाँ पर कोई डिस्टिंक्टिवनेस आप शो कर देते हो. इतना हमारा रेपुटेशन गुडविल हम 50 साल से 20 साल से 100 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, तो इट इज रजिस्ट्रेबल. देन पर्सनैलिटी राइट्स का आपने सुना होगा यार. अमिताभ बच्चन की आवाज, अमिताभ बच्चन का केबीसी में जिस तरह से वो बोलते हैं कंप्यूटर जी, जैकी श्रॉफ बोलता है भिड़ू, ऑल दीज आर पर्सनैलिटी राइट्स. ठीक है. अनिल कपूर को मिला है अपने पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए. तो ये सारे कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट. बहुत तरह के राइट्स हैं इसमें, इट्स नॉट अ सिंगल राइट. बिजनेस एडवांटेज, नेस्ले का अगर आप केस स्टडी करोगे, आप देखोगे कैसे हाउ नेस्ले स्टार्टेड फॉर मदर एंड बेबीज फूड. देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली द इंटेंट, उन्होंने क्या किया, ड्राइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दिए स्पेशली टू द आर्मी. ठीक है. दे started their factories in US. World War over हो गया, अब क्या करें. Then how they proceeded, they diversed their business in new things. They acquired Maggie. They conducted 8 years long research on coffee. ब्राजील में कॉफी तो यूं ही मतलब जैसे होता है ना कि खेतों में ऐसे ही बिखरी रहती थी, कोई यूज नहीं. They came up after 8 years of research. They came up with an Nescafe. So how they grew, इनके कितने trademarks हैं, इनका model is a franchise model, इनका किस तरह का. These are case studies worth knowing by the startups. 7 o'clock सिंपल एक रेजर, बट कितना बड़ा बिजनेस किया, इवन आज तक भी कर रहे हैं. So one innovative product can build a whole business, and one product has multiple these IPR. जैसे 7 o'clock, जिलेट ट्रेडमार्क है, इसके ट्रेड ड्रेस है. देन पैटेंट है इस जिलेट का जिस तरह का ये है ना, इसका डिजाइन राइट है. तो वन प्रोडक्ट कैन इंटरनेशनल सिस्टम. ब्रीफली मैंने आपको बताया पेरिस कन्वेंशन और पीसीटी है.
हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अलग से इस पे कोई सेशन हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल होता है। What kind of significance of IPR is there in, especially for startup business? It gives you exclusivity ताकि आप कुछ समय तक कंपटीशन से अलग रहो अपने प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल में आगे मैंने दिए भी हैं, चलो वहीं पे डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, बेटर कमर्शियल पोटेंशियल एंड एनफोर्समेंट। जैसे कि जोमैटो ने शुरू किया रेस्टोरेंट, या डिसरप्टिव मार्केट की हम बात करें, हम मूवी देखने मूवी हॉल में जाते थे, ओटीटी आया, ओटीटी इज डिसरप्टिव, इट डिसरप्टेड द मार्केट। अभी हम कहीं भी कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। थिंग इज सेम बट इन अ डिफरेंट कॉस्ट इफेक्टिव वे विच इज एक्सेप्टेड। तो या तो आप एक नीड क्रिएट करो, या कस्टमर की नीड को जान के वैसा कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाते हो और एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिसरप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द डिसरप्टिव बिजनेस। जैसे कि कैब सर्विसेज मेरू थी, बहुत सारी कैब सर्विसेज थी पहले, पर ओला ने क्या किया, इट आइडेंटिफाइड कि लोगों को 24/7 नहीं अवेलेबल है, और उसके लिए उन्हें ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि कई बार मिलती है कई बार नहीं मिलती है। ओला से इट्स अवेलेबल टू अस 24/7, एंड ड्राइवर्स को भी उनको जा जाके घंटों कस्टमर्स का वेट नहीं करना। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म विच ओला प्रोवाइडेड। कुछ नया नहीं किया, बट इट प्रोवाइडेड दैट थिंग इन अ न्यू वे, इट डिसरप्टेड द मार्केट। सिमिलरली जोमैटो ने, जो स्कूल में सॉरी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, दे रिक्वायर फूड, लोगों को भी टाइम नहीं है ऑफिस में, दे रिक्वायर फूड, तो उन्होंने क्या किया, फूडी भी शुरू किया। बाद में उन इतना सक्सेसफुल हुआ तो उनको ये फील हुआ कि फूडी दैट मीन्स फूड, तो लेटर ऑन बिजनेस डाइवर्स करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज पीपल विल कनेक्टेड टू द फूड ओनली। सेकेंड, ईबे, ईबे इज ई कॉमर्स वेबसाइट। फ्यूचर में जब बड़ा हो जाता है ब्रांड, कमर्शियली सक्सेसफुल होता है, तब सारी प्रॉब्लम्स आती है। सो उन्होंने कहा कि ईबे कैन sue us कि भाई आपका मार्क डिसेप्टिवली सिमिलर है, एंड पीपल विल थिंक कि आपका ईबे से कोई कनेक्शन है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसको जोमैटो में चेंज किया, और जोमैटो के बाद अभी आपको पता ही होगा रिसेंटली उन्होंने अपने बिजनेस को इटर्नल नाम से रीब्रांड किया। शेखर शर्मा ने, उसका फर्स्ट वेंचर था 197 कम्युनिकेशंस टू प्रोवाइड मोबाइल कंटेंट एंड सर्विसेज, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में क्या चाहिए, फिनटेक, फिनटेक की प्रॉब्लम है। 197 कम्युनिकेशन जो बिल्कुल फेल हो गया, एंड ही वाज अबाउट टू स्टार्ट द बिजनेस, उसने रीस्ट्रक्चर किया और ही केम अप विद द पेटीएम, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। एस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज राजस्थान का बिजनेस है, एग्जांपल है। दिस लेडी नेहा सटॉक, उन्होंने इनिशियल एजुकेशन उनकी अपने ही वहां से ब्यावर से थी, देन जयपुर से उन्होंने किया अपना, अगर आप इसकी यू स्टोरी पे पढ़ोगे, देन शी वेंट टू यूएस। देन उनका जो सबसे अच्छा जो वेंचर था कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस यूजिंग ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, ताकि बेटर कनेक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, तो देखा जाए तो उसी स्पेस में थी जहां पर एलन मस्क है। नाउ शी इज इन बैंगलोर, एस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज। सो दीज आर द एग्जांपल्स। और एक जो हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे थे, जॉसिल जो बजट हॉस्पिटलिटी स्टार्टअप था, उन्होंने ओयो के साथ कुछ मर्जर एक्विजिशंस की बात की, बट उसके बाद उन्होंने एक केस फाइल किया क्योंकि ओयो ने अपना ओयो स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने केस फाइल किया कि ओयो मिसयूज्ड द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मर्जर टॉक्स in 2025. Merger was never materialized, but OYO implemented their ideas and business model. अब क्योंकि उन्होंने confidentiality agreement एग्जीक्यूट किया हुआ था,
they were able to take this up before the court. और जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये डिस्प्यूट आया, लेटर ऑन आर्बिट्रेशन एंड बाद में आई थिंक इट्स वाज सेटलमेंट हुआ, बट देन दे वर एबल टू टेक इट अप बिकॉज उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट शेयर किया था, एग्जीक्यूट किया था. So in conclusion, use non-disclosure agreements and contracts properly. Register your IP early, or even trademarks में तो domain name, trademark, company name, you have to be very very careful. बाकी तो patent वगैरह you do it because it is the patent and design is first to file rights. कॉपीराइट का तो आपको फाइलिंग का भी जरूरत नहीं है, उसके नीचे आपने देखा होगा सी लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर नाम और ईयर. ये तो मेक इट अ प्रैक्टिस to give a message to the public that this is my work. If you are using this work, you either need to take my permission, or you have to pay me, or you have to give me credit. Monitor and enforce your IP rights, क्योंकि आपके राइट को मॉनिटर करना और उसको एनफोर्स करना आपकी ड्यूटी है. कोई और इन्फ्रिंज कर रहा है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो नहीं लेते हो, अगर आप एक्शन लेते हो तो इट कैन हेल्प यू. लेवरेज गवर्नमेंट सपोर्ट. So these are the basics. I hope yes, there is a question. Raised hand. Thank you so much, ma'am. I had a couple of questions to ask on behalf of students. Yeah. And first and foremost, it's like, I have my startup's logo. How do I get it trademarked and how much I have to pay? Where should I go? So could you help us to understand that? Yes. Especially trademark में it is a 2-tier fee. One is large entity, filing fee is 9,000, government fee 9,000. That means फुटवेयर में हो तो क्लास 25, लेकिन अगर आप इसको ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज के लिए भी करते हो क्लास 35 में, समटाइम्स इट इज सर्विस प्लेटफॉर्म जो है क्लास 42 में, तो you can file one single application in single class, or you can file one application in multiple class, but then the fee would be per क्लास. यानी अगर आप 2 क्लास का एक साथ फाइल करते हो, इट इज मल्टीपल ऑफ 9,000. जितनी क्लासेस है उतना मल्टीपल कर दो. नाउ स्मॉल एंटिटी, इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप, इनके लिए दिस फी इज 4,500, 50%. Okay. And if you go under the startup scheme, you have DIBP certificate, तो आपको काउंसिल्स की फी नहीं देनी होती. यहाँ सिर्फ कंसल्टेंसी अगर आप डिस्कशन करते हो, दैट इज अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग. अदरवाइज इट्स ओनली दिस गवर्नमेंट फी, ऑफिशियल फी. काउंसिल को फी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्मॉल एंटिटी में अगर आप फाइल करते हो एंड यू हैव उद्यम सर्टिफिकेट, इन दैट केस अगर आपका मैटर रजिस्टर हो जाता है तो you can apply for reimbursement from the MSME. Okay. So like a lot of students, when they start with Udyam certificate and later on they go to DPIIT. So initial stage when they wish to go, they can just file it and then they can claim for reimbursement. Basically, out of these two, you can get only one benefit, either under MSME or under DPIIT. DPIIT, right. And can they do it on themselves? Or they should go through a lawyer? That is their choice. Lawyer is aware of, nitty-gritties of availability, trans-border these searches and jurisprudence. They can guide you on the descriptive marks. जैसे कि अभी सपोज एक मार्कर सर्जी नेटल सर्जी कुछ, तो सर्जी के मार्क्स हैं, मैंने चेक किया सारे मार्क्स ही अबंडन हो गए, बिकॉज एक सर्जी केयर है उनका बहुत पुराना मार्क है, उन्होंने अपोजिशंस किए. तो वो क्या करता है, एक बैकग्राउंड अगर सर्च करता है, नहीं करता है काउंसिल, तो वहां पर एक डिफरेंट वो है. लेकिन इफ देयर इज एन अवेलेबिलिटी सर्च, क्रॉस बॉर्डर दी सर्च
यू सर्च, दूसरे मार्क जो है दे हैव एंटर्ड इंडिया, रेडी टू एंटर इंडिया, और दे कैन क्लेम देयर इज स्पिल ओवर रेपुटेशन इन इंडिया। तो इसी तरह की चीजें होती है, दो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, So नो वन इज स्टॉप। when you mention 4,500 plus lawyer's fees separate or इट्स it's डिफरेंट, नो नो इट इज सेपरेट। हमने आपको ऑफिशियल बताई, लॉयर्स की सबकी अलग होती है। कोई देखो वो उसका तो इंडिपेंडेंट है, दैट इज देयर। right? इट्स And जस्ट लाइक आप मैंगो परचेज करने जा रहे हैं, कहीं 200 में मिल रहे हैं, 100 में मिल रहे हैं, 50 में मिल रहे हैं। इट कैन बी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, और कई बार क्या होता है फी ज्यादा देके भी क्वालिटी नहीं मिलती, कम देके भी मिल जाती है, सो इट्स ऑल ओपन। okay, and the another set of question is, say for example, a lot of faculty members keep asking it. Say I am currently at X institute. I have applied for an patent. Patent mein I am the inventor and institute's name is there. Now, but I have applied for, and by the time I joined the other institute, and patent was not matured, it was just applied. So in that case, how does it work? Who owns the right for that patent? एप्लीकेंट, आप कहीं भी चले जाओ, जो राइट है वो एप्लीकेंट के हैं। इक्वल अनडिवाइडेड शेयर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी कोई भी एक एप्लीकेंट दूसरे की कंसेंट से, इसको आप इस तरह से लो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जी जॉइंट आपने लिया, जब आप में डिस्प्यूट हुआ या सब डिस्प्यूट हुआ, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, या राइट आपको किसी को रेंट पे देना है तो आप दोनों डिस्कस करते हो, कोई एक तो डिसीजन नहीं ले सकता ना, अनलेस देयर इज लेटर ऑफ कंसेंट और सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट इज देयर। राइट ठीक है, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इट्स नॉट इजी टू डिवाइड इट, यू कांट राइट डिवाइड इट। सो इक्वल राइट अनडिवाइडेड शेयर है जिसमें सबकी कंसेंट चाहिए, अनलेस देयर इज अ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। जो डिसीजन मेकिंग है वो पर्टिकुलर एप्लीकेंट के पास होगी, या कमर्शियल जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कमर्शलाइजेशन का वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट के पास होगा। इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट है किसी भी टाइप का, देन दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इट इज इक्वल अनडिवाइडेड शेयर ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। आप फाइल करके कहीं भी गए हो, ये जरूर रिकमेंडेड है कि क्योंकि कुछ पोस्ट फाइलिंग कंप्लायंसेस होती हैं, फॉर्म 1 होता है फॉर प्रूफ ऑफ राइट, डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सब आप टाइमली फाइल कर लो उस फाइलिंग के तुरंत बाद, क्योंकि बाद में इन्वेंटर जब चले जाते हैं उनको कांटेक्ट करना और साइन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स आप ये भी कर सकते हो कि सब, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि वट एवर राइट इज देयर आईपी राइट्स आर असाइंड टू ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट आल्सो सपोर्ट। हालांकि इट इज रिकमेंडेड कि आप प्रूफ ऑफ राइट दो फॉर्म 1 पे, बट इनके एब्सेंस में एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो सकता है, या 1 पेज का एक छोटा सा असाइनमेंट डीड हो सकता है, दैट कैन हेल्प यू। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया तो ऐसे केस देखने में आए हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू चेज द इन्वेंटर्स। और उस केस में कुछ केसेस में ऐसा हुआ, फिर हमने एप्लीकेंट से एफिडेविट लिया कि ही वाज द इन्वेंटर, ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज पर द कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल राइट्स आर विद असाइनी, और उस सबका हमें प्रूफ देना होता है। तो बेटर फाइलिंग के साथ ही आप सारी पोस्ट फाइलिंग कंप्लायंसेस रेडी रखो, ताकि फ्यूचर में जरूरत ना पड़े, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू कॉन्टेक्ट। एंड जैसे बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइप ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूट वर्क क्रिएट करते हैं, तो हाउ डू वी मैनेज ऑन दीज copyrights and if we file patent for it, how does it work generally into the industry? अगर आप पेटेंट फाइल करते हो तो पेटेंट में तो एप्लीकेंट और इन्वेंटर होते हैं सब, ठीक है। इश्यू जो जनरली आते हैं वो कॉपीराइट में आते हैं, बिकॉज कॉपीराइट इज अ बंच ऑफ राइट। पब्लिशर का अलग राइट होता है, ऑथर का अलग होता है, ओनर का अलग होता है। तो यूजुअली कई बार क्या होता है, जैसे इंस्टीट्यूट चाहती हैं कि वो ओनर हो, तो उसमें लिखा होता है, फिर एग्रीमेंट आप एग्जीक्यूट करो कि ओनर इज द इंस्टीट्यूट, बट ओनर
गिविंग पब्लिकेशन राइट्स टू द ऑथर ऑल्सो, कि वो कहीं भी पब्लिश करा रहे हैं। नहीं, इवन फॉर प्रोडक्ट पेटेंट्स, जो प्रोडक्ट वो ड्यूरिंग यूजिंग इंस्टीट्यूट लैब, इंस्टीट्यूट सपोर्ट, अगर प्रोडक्ट पेटेंट स्टार्टअप क्रिएट करता है, सो देन हाउ डू वी वर्क ऑन दीज यू नो इसमें राइट? प्रैक्टिकली जो सिचुएशन होती है, आपने स्टार्टअप की बात की तो मैं बता रही हूँ, क्या होता है कि प्रोडक्ट यहीं पे बने, इंस्टीट्यूट इज द एप्लीकेंट और स्टार्टअप इज द एप्लीकेंट। स्टार्टअप एप्लीकेंट है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, स्टार्टअप इज एप्लीकेंट, नो इश्यू, राइट भी स्टार्टअप के साथ है, उसको कमर्शियलाइज भी वही करेगा। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप दोनों ही अगर एप्लीकेंट होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपको एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके रखना चाहिए कि ऑल द कमर्शियल राइट्स आर दी स्टार्ट विद द स्टार्टअप, एंड उसके लिए institute will not charge anything. It is no royalty, no fee kind of agreement with the startup, that startup will commercialize it, or institute will not want any kind of commercial this thing revenue, any revenue against it. कई बार क्या होता है, सपोज स्टार्टअप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो और स्टार्टअप और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हो सकता है पेटेंट जब तक ग्रांट हो, हमने वो इंफ्रा डेवलप कर लें, वो कैपेसिटी हो जाए, तो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल टू कमर्शियलाइज दैट प्रोडक्ट इज विद द स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप कहता है कि आई कैन नॉट कमर्शियलाइज, तब ऑर्गेनाइजेशन किसी और को देख सकते हैं। देख सकती है। कई बार ये भी होता है कि अब जब आप असाइन करोगे, कमर्शियलाइज करोगे, आपके बीच में रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगी, ये सब चीजें बहुत क्लियरली आपको अपना एक सारे क्वेश्चनर लिख के रखने चाहिए, और हर एक प्रोजेक्ट के साथ ये चीजें आपकी बहुत क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। Ma'am, also sometimes, like especially our students, they design lot of these dashboards, softwares, small tools, APIs. So are these patentable, or what kind of IPRs they can have for them? देखो, Especially in पैटेंट तो नहीं होता जनरली इफ इट इज सॉफ्टवेयर पर से, बट ये जो डैशबोर्ड या जीयूआई की आप बात करते हो, अगर आप यूएस में देखो, चाइना में देखो, दे आर अंडर, आई मीन इनके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इंडिया में इनको डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते। एक ही केस हुआ, फाइल भी हुआ, कोर्ट केस भी हुआ, कोर्ट ने रिमांड बैक भी किया, बट वो रिफ्यूज ही, तो अभी तक जीयूआई नहीं देते। तो प्रैक्टिस क्या है, जीयूआई, क्योंकि जीयूआई एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गया, है ना, देयर इज सोर्स कोड, देयर इज ऑब्जेक्ट कोड, राइट। तो इंडिया में इसका भी कॉपीराइट ही होता है। Okay. And with research papers, with external projects research, if you got, so can a faculty member retain IPR for that? और Let's say if I got a project from CISR, ICSSR, or whatever, an external organization, right? So I'm an applicant, but the project has come to the institute and I am the PI for the project. So who keeps the IPR for it? जब भी मोस्टली केसेस में आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें लिखा होता है हु विल ओन द आईपी। No, especially from the perspective of institute versus PI. से जब प्रोजेक्ट आते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट करें, अगर आपका आईपी जनरेट होता है इसमें एंड यू फाइल इट, तो किसके, कई बार क्या होता है, जैसे बायरेक देता है, चाहे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, बट वो पेटेंट उस इंडिविजुअल के नाम पे ही होगा। कई बार ऐसा भी आया है, जैसे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ही उसको फाइल करेगी, और अगर इंडिविजुअल करता है तो उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज कर देता है कि हम नहीं करेंगे, तो इंडिविजुअल इज फ्री टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि उसको पहले एनओसी ले लेनी चाहिए। तो ये कंडीशन जनरली सारे प्रोजेक्ट्स में, जो भी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये कंडीशंस होती हैं, यू नीड टू चेक देम। Any other precautions, ma'am, that you suggest for startups to keep in mind, filing their IPRs? Especially data मोस्टली तो हमने come these days.
A lot of times some of our students say, okay, I had my design, I had this, my Figma files have been copied by somebody, and they've made changes into it. So is there any ways to protect all these things, especially for these? It's only copyright. Only इट्स copy. ओनली कॉपीराइट और पैटेंट्स, जो भी हो सकता है उसी में हो सकता है। और एक जो एडिशनल मैं आपको प्रिकॉशन देना चाहती हूँ, जो इंडिया में यूजुअली होता है, बहुत ही ओवर एंथुसियाज्म में हम क्या करते हैं, अरे यार भाई के साथ कर लिया, कजन के साथ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जैसे बिजनेस थोड़ा सा ठीक हुआ, सबका एक इंटरेस्ट आ जाता है, भैया मेरा राइट इतना, मेरा ये, और एग्जिट प्लान दिमाग में नहीं होता। न तो हमने फाउंडर एग्रीमेंट किए होते हैं, न ही एग्जिट प्लान रखा होता है। और यहाँ पर बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है ट्रेडमार्क। हाँ, एक ट्रेडमार्क एक भाई ले सबको नहीं जाता हो रहा पीछे से। हाँ एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम हमने कई जगह देखी है कि, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। कि इसमें क्योंकि न तो फाउंडर एग्रीमेंट है, ट्रेडमार्क बस फाइल करना है, किसके नाम पे करना है, अच्छा एक भाई ने कर लिया, फिर वो फाउंडर से नहीं, फिर वो कंपनी बना ली, थोड़ा सा ठीक हुआ और एक भाई बोला अरे ट्रेडमार्क तो मेरा है, मैं तो ले रहा हूँ। अब स्टार्टअप क्या करेगी, है ना? तो सारी चीजों पे आपका आईपी, नॉन आईपी, फाउंडर्स एग्रीमेंट, एग्जिट प्लान्स, ये सब आपका दे शुड बी इन प्लेस। कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है बिजनेस में, चेंजेस होते हैं, पीपल, कुछ लोगों को ट्रस्ट होता है वी कैन बिल्ड, कुछ कहते हैं नहीं वी कांट गिव दिस मच ऑफ टाइम, वो निकल जाते हैं। तो एंट्री एग्जिट से इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़े। Right. Makes sense. Thank you. Anyone have any question can ask? Anyone having any question? ये कुछ क्वेरीज मैं देख रही हूँ। हाउ डू ma'am. वी सर्च Yes. How do we search? फॉर ऑलरेडी फाइल पैटर्न ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क के लिए आपको अवेलेबिलिटी सर्च देखना होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की वेबसाइट पे, और वो क्लास स्पेसिफिक होती है, ठीक है? और ऑलरेडी फाइल्ड पैटर्न से आप गूगल पैटर्न्स पे चेक करो, बट उसमें इंडियन पैटर्न नहीं होते, तो कहीं और भी फ्रीली अवेलेबल है, पैटर्न लेंस है शायद, कुछ कुछ है, वहाँ भी चेक कर सकते हो। और जो नॉन पैटर्न वाले डॉक्यूमेंट है वो आप गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हो, है ना? और अगर ब्लास्ट सर्च करनी है तो इसके लिए शायद ये कौन सा एनबी कुछ है ना, सीक्वेंस लिस्टिंग के लिए करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। देन डू स्टार्टअप गेट सम रिबेट फॉर फाइलिंग ट्रेडमार्क? वो हमने बता दिया, स्टार्टअप का 50% चार्ज। पेटेंट में नॉर्मल फाइलिंग फी 8,000 है, बट स्टार्टअप के लिए 1,600 है। काउंसिल की फी आपको देनी नहीं होती है ना? Then as an academician, what all we can look for copyright for our research? देखिए आपके रिसर्च के लिए जो कॉपीराइट है, सबसे पहले तो देखिएगा आपकी रिसर्च इफ इट इज वर्थ पेटेंटिंग, तो पहले पेटेंट कीजिए, और उसके बाद आप कॉपीराइट अगर फाइल करना चाहते हैं, आप कॉपीराइट फाइल कीजिए। कॉपीराइट फाइलिंग बहुत ट्रिकी नहीं है, और आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी करते हैं, तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। और एक हैबिट बनाइए, सपोज आप एज ए रिसर्चर अपनी रिसर्च पे कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ छोटा ब्लॉग आप लिखते हैं, एक हैबिट करिए उसके नीचे कॉपीराइट नोटिस का, जो मैं आपको दिखाती या लिख के मैसेज में देती हूँ। Got it. All हाँ right. बिल्कुल बिल्कुल, सी लिखा होता है, फिर अपना नाम लिखिए और ईयर लिखिए, दैट्स इट। बाकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए, दो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट बेटर you file the copyrights. Very nice. I mean, I think I can go on and on, but thank you so much, ma'am. These small things really matter for students as well as for all academicians out here. We'll keep bothering you, but this was quite informative session. Thank you so much for sparing your time. Thank you for this opportunity. I am getting a thumbs up, which, oh, Garvit, I mean, many thumbs up. Thank you very much. You can contact me anytime, any one of you, if you need any, consultancy.
Certainly, we'll do that. Any kind of, if you have any confusion, you need any kind of guidance, please feel free. Thank you so much. And anytime when you're visiting Jaipur, let us know. We'll be happy to host you. Sure, sure. Thank you so much. Okay. Good day. Okay, Everyone bye-bye. for joining My us. pleasure. Yeah.